فرمانے جا رہا ہے عزت مآب علی جناب مولانا اکبر حسین خان صاحب. لہذا ملاحظہ فرمائیے کربلا کہتی ہے دو راہوں پر چلنا چھوڑ دو, اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو. بغض رکھتے ہو اگر تم فاطمہ کی آل سے, فاطمہ کی مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو. بغض رکھتے ہو اگر تم فاطمہ کی آل سے, فاطمہ کی مہر میں پانی ہے پینا چھوڑ دو. تو پہلے گھر جلواؤ اپنے اپنے سر کٹواؤ, ہم سے پھر کہنا کہ ظالم پر تبرہ چھوڑ دو. پہلے گھر جلواؤ اپنے اپنے سر کٹواؤ, ہم سے پھر کہنا کہ ظالم پر تبرہ چھوڑ دو. آئیے حضرات میں بڑے ادب و احترام سے عرف التماس لے کر پڑھ رہا ہوں عزت مآب علی جناب مولانا اکبر حسین خان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. انشاءاللہ تقریر کے فوراً بعد میں گزارش کروں گا انجمن ناصر الازا بڑا گاؤں کے تمام ہم نودستے کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور صدا بولتے ہوئے جلوس کو آگے لے چلیں. تقریر کے فوراً بعد میں ملتمس رہوں گا انجمن ناصر الازا بڑا گاؤں کے تمام ہم نودستے کی بارگاہ میں میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو برائے کرم جلوس کے ہمراہ رہیں. بآواز بلند نعرے صلوات سے آپ قبلہ کا استقبال فرمائیں. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی مدنی المکی الابتہی التحامی سید البہی السراج المزی القوقب الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین نبی القاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والسجاة الحسينية والعباد السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بنت محمد إن السعي كل السعي حق السعي من أحب عليا في حياته بعد مماته إن الشقي كل الشقي حق الشقي من ابغض علیا فی حیاتہ بعد مماتہ. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان گرامی دوستان ایمان، جیسا کہ آج استقبال ماہ اعظم میں یہ جلوس منعقد کیا گیا ہے، آج 9 ذی الحجہ یعنی ابھی ماہ محرم کے چاند کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. ابھی یہ بھی خبر نہیں ہے کہ آج چاند ہوگا یا کل ہوگا، یعنی دور دور تک چاند کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ چاند کب ہوگا. لیکن ہم آج اس جلوس کو قائم کر کے، میں اپنے پہلے ہی جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم اس جلوس کو قائم کر کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ماہ محرم کے چاند کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ چاند خود ماہ محرم کا محتاج ہے. چاند خود انتظار میں ہے کہ ماہ محرم آئے تو ہم نمودار ہوں. تو یہ استقبال عزا کے لیے ہم یہ جلوس آج بڑا گاؤں کوہڑا بڑا گاؤں کی سرزمین پر برآمد کر رہے ہیں. آپ آمادہ ہیں تو 2-4 جملے سن لیں. میں نے حدیث فرمائی، فاطمہ زہرا ارشاد فرما رہی ہیں ان السعی کل السعی حق السعی
من अहब्ब अलियन फी हयातिही बादा ममाते फी हयातिही बादा ममाते, तर्जुमा करूँगा तो दिल खुश हो जाएगा। बेशक कामयाब, मुकम्मल कामयाब, हकीकी कामयाब वो है जो अली से मोहब्बत अली की ज़िंदगी में भी करे और अली के मर जाने के बाद भी मोहब्बत करे। फातिमा ज़हरा इरशाद फरमा रही, अली से मोहब्बत जो ज़िंदगी में भी करे और अली के मर जाने के बाद भी मोहब्बत करे, वो कामयाब है। ये हुआ तवल्ला। कम लोग बोले, लेकिन इस जुमले पे मैं चाहता हूँ कि और लोग बोले। अब तबर्रा सुने, फातिमा ज़हरा ने आगे बढ़ के जुमला कहा, इन्ना शकी कुल्ल शकी हक शकी मन अबगज़ा अलियन फी हयातिही बादा ममाते। नाकाम, बेशक नाकाम, मुकम्मल नाकाम, हकीकी नाकाम वो है जिसने अली से बुग़्ज़ अली की जिंदगी में भी रखा और अली के मर जाने के बाद भी बुग़्ज़ रखा। देख रहे हैं ये जुमले कि नाकाम है वो इंसान जिसने अली से बुग़्ज़ रखा। अभी आप इस जुलूस को बरामद कर रहे हैं, आप अज़ादार हैं, आप ही के ऊपर अब फतवे लगने शुरू हो जाएंगे, फतवे की फहरिस्त आपके ऊपर आने वाली है। तो क्या ऐसे ही खामोश रहकर आप उन फतवों को कुचलेंगे? हमने तो देखा है जब भी फतवे आते थे, कोई यजीद को रज़ी अल्लाह कह रहा था, कोई यजीद को अच्छा बता रहा था, कोई कह रहा था यजीद ने हुसैन को कत्ल नहीं किया, तो कोई कह रहा है यजीद को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। यानी फतवों की कतारें लगने वाली हैं। ये मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, फतवे आने शुरू हो जाते हैं, यजीद के फजाइल बयान होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही अज़ादार हैं जो अज़ादार अपने कदमों के तले उन फतवों को कुचल कर बताते हैं कि सुनो, गद्दार कौमें और है, अज़ादार कौमें और है। यही अज़ादार है। आप बोले ताकि पहचाने जाए। मौला अली ने नहजुल बलागा में ऐसे नहीं कहा कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब बोलो तो पता चलेगा कि दुकान कोयले की है या फिर हीरे की है। आप बोले ताकि पता चले कि आप मौलाई हैं। आप बोले ताकि पता चले मौलाई हैं। लीजिए, मैं मौला की बारगाह से मौला के फजाइल आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब आप मौला की बारगाह में नजफ़े अशरफ पहुँचेंगे, जो हजरात जा चुके हैं मौला उन्हें बार बार बुलाए, जो हजरात अभी नहीं गए हैं मौला उन्हें जल्द से जल्द अपनी बारगाह में बुलाएं ताकि वो ज़ियारत कर सकें। जब आप पहुंचेंगे हरम मुबारक में, पहुंचने के बाद जब जरी के करीब पहुंचेंगे, जरी को जब बोसा देंगे तो जरी के ऊपर देखेंगे जो गुम्बद बना हुआ है, उस गुम्बद में अशार लिखे हुए हैं, सोने के तारों से अशार लिखे हुए हैं। एक शेर जिसका मैं तर्जुमा करना चाहता हूँ, इब्ने हदीद मुतज़िली का शेर है। वो कहते हैं कि या अली, देखे मौलाई मजमा है, ये जुमला सुन के आप खुश होंगे कि या अली, जब से मैंने सुना है कि लोग काबे का तवाफ करके हाजी बन जाया करते हैं, उस रोज से लेकर आज तक मैं आपके जरी का तवाफ करके हाजी बन जाया करता हूँ। बहुत बड़ा जुमला इब्ने हदीद मुतज़िली ने कह दिया कि जब से सुना है लोग काबे का तवाफ करके, मुसलमान काबे का तवाफ करके हाजी बन जाते हैं, मैं आपके जरी का तवाफ करके हाजी बन जाता हूँ। किसी ने पूछा क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? भाई हाजी बनने के लिए मक्का जाना शर्त है, हाजी बनने के लिए मक्का जाना शर्त है, नजफ जाना शर्त नहीं है। आप कह रहे हैं हम मक्का नहीं जा रहे हैं, हम बल्कि नजफ़ अशरफ आकर मौला की जरी का तवाफ कर कर हाजी बन जा रहे हैं। इब्ने हदीद मुतज़िली ने कहा शायद तुम्हें पता नहीं है, मुझे ये बता हाजी लोग कब बनने लगे, लोग हज कब करने लगे, ये बता काबा कब मोहतरम हुआ? का सुनो, ये मोहतरम उस वक्त हुआ जब अली काबे में विलादत हुई, यानी जब अली काबे में आ गए, उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके बाद लोग हाजी बनने लगे, हज में जाने लगे। तो मुझे ये बता
जिस काबे में अली 3 दिन रहे वो इतना मोतबर हो जाता है कि मुसलमान उसका चक्कर लगा ले तो हाजी बन जाता है। अरे जिस नजफ अशरफ में अली आज तक सो रहा हो वो कितना मोतबर होगा। जिस काबे में सिर्फ 3 दिन मेरा मौला रहा हो वो इतना मोतबर है कि चक्कर लगा ले तो हाजी बन जाए। जिस नजफ अशरफ में मेरा मौला आज तक सो रहा है उसका मर्तबा क्या होगा, वो कितना मोतबर होगा। आइए एक शख्सियत मुझे याद आती है, सुल्तान सलीम उस्मानी जब मौला के हरम के करीब पहुंचे, वो मौला के चाहने वाले थे नहीं, लेकिन जब अंदर गए ज़रीह मुबारक को बोसा देते हैं, बोसा देने के बाद पलटते हैं, जैसे हरम के बाहर आते हैं मौला के चाहने वाले हो जाते हैं। और ऐसे चाहने वाले को वो खड़े होते हैं, खड़े होकर एक जुमला कहते हैं। क्या जुमला कहते हैं सुने, अलैकुम बनी ज़हरा हज्जी व उमरी, ए ज़हरा के बेटो मेरा हज आपके लिए है, मेरा उमरा भी आपके लिए है। देख रहे हैं अभी था नहीं, अली का चाहने वाला था नहीं, लेकिन जैसे ही ज़रिए मुबारक को बोसा देता है पलटता है, फौरन जुमला क्या कहता है, अलैकुम बनी ज़हरा हज्जी व उमरी, ऐ ज़हरा के बेटो मेरा हज आपके लिए, मेरा उमरा आपके लिए। उसके बाद जो दूसरा जुमला है वो कसम खुदा की सुने आप, दूसरा जुमला कहता है व अंतुम सल्लैतो लिल्लाहि किबलती। अब जुमला सुने, ये जुमला सुनने वाला है, व अंतुम सल्लैतो लिल्लाहि किबलती, मेरी नमाजों का किबला आप है, मेरी नमाजों का किबला आप है। अब समझ में नहीं आता, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो किबला काबे को बनाते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कह रहे सुल्तान सलीम उस्मानी क्या कह रहे हैं, जब मैं अल्लाह की नमाज पढ़ता हूं तो उसके किबला आप होते हैं, जब मैं अल्लाह की नमाज पढ़ता हूं उसके किबला आप होते हैं। मुझे भी उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन जब गौर किया तो समझ में ये आया, दिल के किबले को काबा कहते हैं, जिस्म के किबले को काबा कहते हैं, दिल के किबले को अली कहते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। एक शख्स ने एक हदीस पढ़ी, आपकी अजमत क्या है बताऊं। इस शख्स ने एक हदीस पढ़ी, इज्जतुल मोमिन अफजल मिन काबा। जैसे उसने ये हदीस पढ़ी उसे समझ में नहीं आया कि इज्जतुल मोमिन अफजल मिन काबा, मोमिन की इज्जत काबे से अफजल है। आपके लिए हदीस पढ़ रहा हूं कि मोमिन की इज्जत काबे से अफजल है। भागता हुआ छठे इमाम के पास आया, आने के बाद कहने लगा मौला मैंने एक हदीस पढ़ी है, मुझे समझ में नहीं आती, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी जानिब से ये हदीस लिख दी है। मौला ने कहा शक बाद में करना, पहले मुझसे शरा करा ले, शक बाद में करना, पहले मुझसे इसकी शरा करा ले, ये हदीस कैसी है। उसने कहा मौला समझ में नहीं आता, इज्जतुल मोमिन अफजल मिन काबा, मोमिन की इज्जत काबे से अफजल है। मौला मुझे बताएं कहाँ ये मोमिन है, कहाँ वो काबा है, कहाँ ये मोमिन है, कहाँ वो काबा है, कहाँ ये मोमिन है, कहाँ वो काबा है, कहाँ ये मोमिन है, थोड़ा सा बेदार हो, कहाँ ये मोमिन है, कहाँ वो काबा है, कहाँ ये मोमिन है, कहाँ वो काबा है। मौला ने कहा मुझे बता काबा कब मोहतरम हुआ, कहा जब अली की विलादत हुई। कहा ये बता अली कितने दिन काबे में रहे, कहा 3 दिन। कहा मुझे ये बता जब अली काबे में 3 दिन रहे इतना मोतबर हो गया, जिन मोमिनों के दिलों में अली हमेशा रहते हो। क्या कहने जिस काबे में अली सिर्फ 3 दिन रहे वो इतना मोतबर, जिन मोमिन के दिलों में अली हमेशा रहते हो। सोचो उसकी अजमत क्या है, सोचो उसका मर्तबा क्या है। आप अपनी अजमत देखें, अपना मर्तबा देखें। वक्त तमाम हुआ वरना और कुछ अर्ज करता कि ये अली हैं,
इनकी फजीलत, इनकी अज़मत बहुत है और कभी भी आप बोलने पे शर्माया न करें। और याद रहे यही फजीलत थी जिस फजीलत को मिटाने के लिए एक से एक जुल्म भी होते रहे अहले बैत पर। जानते हैं करबला में जब आका हुसैन ने बनी असद के लोगों से कहा कि जब हम सब शहीद हो जाएं तो आना हमें दफन कर देना, बच्चों से मुखातब होके कहा, मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ, बच्चों से मुखातब होके कहा, ए बच्चों अगर तुम्हारे वालिदैन ना आ सके तुम खेलते खेलते थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमारे लाशों पे डाल देना ताकि हमारा लाशा ज़मीन में छिप जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वसीयतें की है मौला ने, कहा जब भी ज़ायर आए मेरे कब्र की ज़ियारत करने के लिए तो उन्हें के खाने का इंतज़ाम करना, उन्हें 3 दिन मेहमान रखना। और वही हुआ। शहादत के बाद बनी असद के लोग एहतमाम करने लगे, ज़ायरीन आने लगे। जानते हैं अचानक एक साल ऐसा हुआ कि ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हुआ। अब जो बनी असद का सरदार था उसने सोचा ज़ायरीन में इजाफा हो गया है, मैं इतना एहतमाम कैसे करूँगा, मैं कैसे इन्हें खिलाऊँगा, मैं क्या खिलाऊँगा, उसे समझ में नहीं आया। लेकिन मौला की वसीयत याद आ गई। मौला ने कहा जब भी कोई परेशानी होगी तो किसी और के दर पे न जाना बल्कि मेरी ज़रिए मुबारक आना, बल्कि मेरे पास आना, मुझसे मांग लेना, मैं अता कर दूंगा। वो भागता हुआ ज़री के पास आया, ज़री को थामता है, गिरिया करता है, करने के बाद कहता है मौला ज़ायरीन में इजाफा हो गया है, मैं इतना एहतमाम कहाँ से करूं, इन्हें कहाँ से खिलाऊं। जानते हैं अभी ये रो ही रहा था कि एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है ए बनी असद के सरदार सुनो मेरे साथ चलो, मैं कुछ सामान दे देता हूँ। उसने कहा नहीं, मेरे मौला ने कहा है किसी के पास न जाना, भागते हुए मेरे पास आना, कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आना। हो सकता है जैसे हम जुलूस करते हैं, कभी जुलूस में अज़ादार ज़्यादा आ सकते हैं, तो हो सकता है हमारे साथ भी ये हो, तो आप भी मौला की तरफ रुख करना। मौला ने बनी असद को भी ये फरमाया कि मेरी तरफ रुख करना और मुझसे मांगना। जब उसने कहा कि मौला ने कहा किसी और के दर पे न जाना बल्कि मेरे दर पे आना, तो आने वाले शख्स ने कहा अरे तुम्हें इसी मौला की कसम है, मेरे साथ चलो और जो सामान देता हूं उसे ले लो और ज़ायरीन का एहतमाम करो। जब मौला की कसम दे दी वो शख्स चला। चलने के बाद एक जगह पहुंचा जहां पर देखा उसने बहुत सारे सामान रखे हुए थे, कहा सब ले जाओ और ज़ायरीन का एहतमाम करो। जब इतना कहना था वो सरदार कहता है अच्छा ये सामान अपने हाथों से उठाकर मेरे सर पे रख दो, ये सामान उठाकर मेरे सर पे रख दो ताकि मैं इसे इसकी असल मंजिल तक पहुंचा दूं। आने वाला शख्स कहता है माफ करना मेरे हाथ नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। लो आ गए गाजी अबुल फजल अब्बास, लो मदद करने के लिए पहुंच गए। आप जितने भी ज़ायरीन हैं सबकी मदद के लिए आ गए। मौला ने यही जुमला का हाथ नहीं है लेकिन जो भी ज़ियारत के लिए आएगा उसका इस्तकबाल के लिए हम खड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनोगे मसाइब का जुमला, किसी का कहना है मसाइब ऐसा पढ़ा करो कि दीवारों दिल हिलने लगे। जानते हैं जनाबे सकीना बाबा से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, शहादत हुसैन के बाद जनाबे सकीना ने अपने बाबा से 2 मरतबा मुलाकात की है। अगर इस मसाइब पे तड़प के रो सकते हो तो तड़प के रोना। जनाबे सकीना ने 2 मरतबा अपने बाबा से मुलाकात की है। शहादत हुसैन के बाद 2 मरतबा मुलाकात की लेकिन मुलाकात अधूरी रह गई। आप सोच रहे होगे ये कैसी मुलाकात थी जनाबे सकीना की अपने बाबा से जो मुलाकात अधूरी रह गई। सुन सकोगे जुमला तो सुनो, कलेजे पे हाथ रख लो और सकीना का मसाइब सुनो। सुनो जनाबे सकीना कहती है मैंने 2 मरतबा मुलाकात की अपने बाबा से लेकिन मुलाकात अधूरी रह गई।
हुई, अरे एक मुलाकात शाम गरीबा में हुई, अरे जिस्म था लेकिन सर नहीं था। एक मुलाकात शाम के जिंदान में हुई, अरे बाबा का सर मिला लेकिन जिस्म मौजूद न था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हाय रे सकीना, हाय रे मुसीबत, सुन सकोगे सकीना के मसाइब? जानते हैं सकीना के मसाइब में छोड़ रहा हूँ, बस एक फिक्रा पढ़ देता हूँ कि जब जनाब सकीना जिंदान में थी ना, इतना गिरिया करती थी कि जब वहाँ के बच्चे अपने स्कूल जाया करते थे तो सकीना के रोने की आवाज़ जब इनके कानों में आती थी, ये पलट के अपने घर आते थे, अपने वालिदैन से सवाल करते थे, ए मेरे बाबा मुझे बताओ आखिर कैद खाने में कौन सी बच्ची है? जब भी हम स्कूल जाते हैं तो उसके रोने की आवाज़ आया करती है। वालिदैन ने बताया, बच्चों वो कोई और नहीं बल्कि एक यतीमा है जिसके रोने की आवाज़ आती है। अब ये बच्चे सवाल करते हैं, यतीमा कैसी होती है? यतीमा किसे कहते हैं? हमने कभी यतीमा को नहीं देखा, क्या हमें यतीमा दिखाएंगे? वालिदैन ने कहा ठीक है, हम पहले इजाजत ले लें, अगर जिंदान में जाने की इजाजत मिल गई तो जरूर हम दिखाएंगे यतीमा कैसी होती है। लो वालिदैन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दूसरे दिन जिंदान में पहुंचे। लो जिंदान में पहुंचे, सामने सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, बैठे हुए हैं। वालिदैन करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद कहते हैं, ए सैयद सज्जाद मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं, ये यतीमा देखना चाहते हैं, तुम इन्हें यतीमा दिखा दो। सैयद सज्जाद ने कहा, बच्चों आओ मेरे साथ चलो, हम तुम्हें यतीमा दिखाते हैं, कसम खुदा की बर्दाश्त हो सके तो बर्दाश्त कर लेना। सैयद सज्जाद छोटे छोटे बच्चों को लेके आगे चले। चलने के बाद एक कैद खाने में पहुंचे। कैद खाने में पहुंचने के बाद उंगली का इशारा किया, बच्चों ने देखा एक 4 साल की बच्ची उस कैद खाने में बैठी हुई है, होठ खुश्क है। हाय, बच्चों ने देख के कहा, हाय यतीमा ऐसी होती है, इतनी प्यासी होती है। जब सकीना ने बच्चों को देखा, बच्चे मुझसे मिलने आए हैं, फौरन सकीना या अली मदद कह के खड़ी हुई, हड्डियां चिटक गई, बच्चे बेहोश हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। तड़प के रोया करो। अज़ादारों सुनोगे मसाइब। जैसे ही बच्चे बेहोश हो गए, वालिदैन आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद बच्चों को उठाया, उठाने के बाद घर लाए। जब बच्चे होश में आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ए बाबा, ए बाबा हमने यतीमा देख ली, ए बाबा, ए बाबा हमने यतीमा देख ली, लेकिन यतीमा इतनी प्यासी होती है हमने कभी सोचा नहीं था। यतीमा कई दिन से लगता है खाना नहीं खाई है, यतीमा ने पानी नहीं पिया है। हम चाहते हैं हम खाना लेके जाए, हम चाहते हैं पानी लेके जाए, उस यतीमा को पानी पिलाना चाहते हैं, उस यतीमा को कुछ खिलाना चाहते हैं। वालिदैन ने कहा, एक दफा इजाजत मिल गई है, अब दोबारा जिंदान में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरे दिन हम इजाजत ले लेंगे, तो बच्चों चलना, जो दिल करे खिला देना, पानी पिला देना। लो दूसरा दिन आया, वालिदैन अपने अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़े। बच्चों ने कहा, बाबा ठहर जाए, बाबा ठहर जाए। बच्चे घर में गए। घर में जाने के बाद एक ज़रूफ में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाने का सामान लेके बाहर आए। कहा, बाबा अब चलो, हम सकीना को पानी पिलाएंगे, हम यतीमा को खाना खिलाएंगे। वालिदैन बच्चों को लेके साथ बढ़े, वालिदैन बच्चों को लेके साथ बढ़े। अगर दिल पत्थर का होगा तो नहीं रोएगा। लो वालिदैन बच्चों को लेके साथ बढ़े। जैसे ही पहुंचे, सैयद सज्जाद से कहा, ए सैयद सज्जाद, मेरे बच्चे उस यतीमा को खिलाना चाहते हैं, मेरे बच्चे उस यतीमा को पानी पिलाना चाहते हैं। सैयद सज्जाद ने कहा, बच्चों आओ मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ आओ। सैयद सज्जाद बच्चों को लेकर जिंदान में पहुंचे। पहुंचने के बाद उंगली का इशारा किया। बच्चों ने देखा जिंदान में कोई
کوئی بچی نظر نہیں آئی. کہا کہاں ہے یتیمہ, کہاں ہے وہ یتیمہ, کہاں ہے وہ بچی جسے ہم کل دیکھ کے گئے تھے, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. سید سجاد 2 قدم پیچھے ہٹے, ہٹنے کے بعد انگلی کا اشارہ زمین کی طرف کیا, قاضی قبر دکھائی. اے بچوں جسے کل دیکھ کے گئے تھے, ارے وہ بچی مر گئی. اے بچوں وہ سکینہ مر گئی, وہ یتیمہ مر گئی. اے بچوں پانی پلانے آئے ہو نا,